Hello, everyone. So, there is a good news for all the law aspirants or maybe the law students. So, basically, Supreme Court के law researcher कम research associate की 90 vacancies announce की गई हैं with a very good remuneration for the law students, for the graduates as well as those who are still in their final semester. अब now when we talk about the importance of this exam, क्योंकि students इस time पे they are worried about maybe the 3-year practice rule in the judiciary exam उनके लिए, and in general also for all those who are preparing for the judicial services examination, उनके लिए this exam or this position of Supreme Court law researcher may be very useful. The reason here is, as a Supreme Court law researcher, सबसे पहले तो you will get the exposure to work under the Honorable Supreme Court Judge. वहां आपको एक proper idea होगा as to how the apex court works. Also, आपके पास जो टास्क आपको दिए जाएंगे, you will be told to make briefs, आपको रिसर्च करना होगा, and trust me, जो रिसर्च आपको एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉ रिसर्चर के लिए दी जाएगी, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, बिकॉज वहां पे यू विल कम अक्रॉस और यू विल बी गिवन द रिसर्च वर्क अपॉन वेरियस सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट्स, रीसेंट जजमेंट्स, उसी में से आपको रिपोर्ट्स बनानी होंगी. देयर विल बी अपील्स, रिट पिटिशंस, एसएलपीज, जहां से आपको ब्रीफ्स बनाने होंगे. सो इट इज गोइंग टू एनहांस योर रिसर्च स्किल्स. It is going to help you to improve your writing or drafting skills also. So for that purpose, it is a very good opportunity for all those who belong to the legal background. And it is very good for those who are preparing or aspiring to be judicial officers. This can be a very good opportunity. Exam, as per the notification, tentative date for the examination is 7th of March 2026. अब कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट हमारे इवन क्लासरूम में भी आई केम अक्रॉस द डाउट ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन मैम, क्योंकि आपको सारी स्कीम अवेलेबल है आपके पास, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, द सिलेक्शन प्रोसीजर इज ऑल्सो देयर, बट नाउ आफ्टर द चेंजेस, नाउ this exam is being conducted in 2 parts. वैसे तो there are 3 stages, interview is also there, but अगर देखा जाए, हम अगर examination की बात करें, so the entire examination is divided into 2 parts. Part 1 is the objective paper, that is the MCQ based paper. अब सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी MCQ based पेपर की. जो इस एग्जाम में पार्ट 1 एमसीक्यू बेस्ड पेपर आने वाला है, उसमें यू विल गेट सर्टेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग आल्सो. इट इज गोइंग टू बी अ 2.5 आवर पेपर. ये आपका टोटल 2.5 आवर्स का पेपर होगा एमसीक्यू वाला पार्ट 1 जो है, एंड ये डिफरेंट एमसीक्यूज में डिवाइडेड होगा. यू विल हैव सर्टेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस. आपको पैसेज दे दिया जाएगा और उसको रीड करके यू विल बी आस्क्ड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच विल बी गिवन बिलो द पैसेज. Other than that, you will be given certain questions which are aptitude based or analytical questions. Analytical means which involves the application of legal concept upon the given factual matrix. So MCQs में आपके पास analytical questions होंगे, reading comprehensions होंगे, and there will be certain questions upon the landmark as well as latest judicial pronouncements also. आपके पास लैंडमार्क और लेटेस्ट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स पे भी क्वेश्चन आएंगे, एंड ऑफ कोर्स जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आपको पढ़ने हैं ऑफ अ फ्यू सब्जेक्ट्स, फ्यू कोर एरियाज ऑफ दिस एग्जाम. द कोर एरियाज ऑफ दिस एग्जाम विल बी कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस, एविडेंस एक्ट एंड बीएसए, आईपीसी एंड बीएनएस, एंड अदर देन दैट द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. लेकिन ये कोर एरियाज है. इसके अलावा there can be some other questions maybe which are indirectly related with this core areas,
बट मेन क्वेश्चंस इन कोर एरियाज में से होंगे। इन कोर एरियाज में से यू विल बी आस्क्ड certain MCQs upon the legal provisions, for example the section numbers। आपसे इन core areas जो मैंने अभी आपको subjects बताए, इनमें आपके पास जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द पैटर्न ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज एमसीक्यू पेपर। एमसीक्यू के बाद पार्ट 2 ऑफ द पेपर की बात आती है, एंड पार्ट 2 इज सब्जेक्टिव, which is basically the descriptive part of the paper, जहां पे you will be asked to write answers, make briefs, etc. That means ये handwritten paper होगा। आपका जो MCQ पेपर है, it will be in a computer mode, लेकिन आपका जो part 2 जो subjective paper होगा, the questions will be visible on the computer screen, but you have to write the answers or briefs, you have to write your substance on the paper। ये जो पार्ट 2 होगा सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर, इट विल बी टोटली a 3.5 hour पेपर which includes 30 minutes of reading time also। अब ये जो पेपर है, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, इसमें आपके पास टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 which is the most important one, in which you will be asked to prepare a brief। आपको एक ब्रीफ प्रिपेयर करना होगा। दैट मींस आपको एक एसएलपी, एक रिट पिटीशन या फिर एक अपील, सिविल या क्रिमिनल अपील दे दी जाएगी, और उससे आपको एक प्रिसाइज नोट या फिर एक ब्रीफ तैयार करना होगा ऑफ अबाउट 700 to 750 वर्ड्स। नाउ यू विल बी जज्ड अपॉन दैट ब्रीफ एज टू आपने किस तरीके से, एसएलपी है, कोई रिट पिटीशन है, कोई अपील है, तो अगर अपील है तो हाई कोर्ट के किसी जजमेंट से अगर अपील है, सिविल क्रिमिनल एनी जजमेंट, सो हाउ वेल यू हैव इनकलकेटेड द रेशियो ऑफ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, हाउ वेल यू हैव प्रेजेंटेड द ग्राउंड्स ऑफ द अपील और द ग्राउंड्स ऑफ द एसएलपी, हाउ वेल यू हैव प्रेजेंटेड द फैक्चुअल मैट्रिक्स इन ब्रीफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा ब्रीफ प्रिपरेशन का। ब्रीफ प्रिपरेशन के बाद क्वेश्चन नंबर 2 इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर वुड बी टू मेक अ ड्राफ्ट रिसर्च नोट। आपको एक ड्राफ्ट रिसर्च नोट बनाने के लिए दिया जाएगा। यहां पे आपको एक फैक्चुअल प्रॉब्लम दे दी जाएगी। उस फैक्चुअल प्रॉब्लम के साथ आपको उसी फैक्चुअल प्रॉब्लम में द स्टैट्यूट्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, दे विल बी मेंशन्ड देयर। उसी फैक्चुअल प्रॉब्लम में the judicial pronouncements which are relevant as well as irrelevant to that factual matrix, वो भी आपको उसके साथ दिया जाएगा। तो उस पूरी प्रॉब्लम का आपको एक ड्राफ्ट रिसर्च नोट बनाना होगा। यू हैव टू रिसर्च अपॉन दैट फैक्चुअल प्रॉब्लम एंड उसका एक ड्राफ्ट रिसर्च नोट की, अगर मैंने आपको कोई टॉपिक दिया है तो उस पर रिसर्च करके what all important information you will incorporate in your research note, that is the test here। Because as a law clerk cum research associate, you will be given a task maybe to make briefs or to do the research work for the apex court, and in that situation that is being judged here कि कितना ज्यादा आप well versed हो रिसर्च इंजन से या अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी से, that is being tested in question number 2। and finally the question number 3 here is analytical answer। यहां पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। you have to answer 1 out of those 5 given questions, और ये एक बेसिक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन होगा जहां पे आपके एनालिटिकल का मतलब होता है हाउ वेल यू अप्लाई द लॉ अपॉन द गिवन फैक्ट्स। तो आपकी एप्लीकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स विल बी टेस्टेड हियर। Here each and every answer is to be given within 700 to 750 words, and totally ये 300 marks का आपका subjective paper होगा। So this is the scheme of the examination as to how you have to prepare, what all you have to cover, and how the examination of this position, this post is to be conducted on 7th of March 2026.
जैसा मैंने बोला, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, 90 वैकेंसीज आई हैं, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दी students who belong to the legal background. And yes, one more thing, eligibility criteria is also very good. जो लोग graduates हैं, चाहे 5-year LLB हो, चाहे 3-year LLB हो, आप eligible हो. उसी के साथ साथ the ones who are in their final semester, जो final semester में हैं, they are also eligible for this examination. The only condition is final selection तक, मतलब जब आपको असाइन किया जाएगा तब तक आपका फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका होना चाहिए. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, देन इवन द परस्यूइंग वंस, दोज हु आर इन देयर फाइनल सेमेस्टर, दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन. So that is about the Supreme Court Law Clerk cum Research Associate Examination. I wish you all the best for your preparation and your exam, which is going to be conducted in March 2026. Good luck. Best of luck. God bless you.